Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is Mrs. Bushra Mushtaq, PG Psychiatric Nursing. Today I am here with the part third of the video, that is abortion. Today I will be discussing about the septic abortion and some of the portion of the recurrent abortion. Septic abortion, the word here will indicate septic. This portion is associated with the word sepsis, that is infection. So any sort of infection in any type of the abortion can be regarded as the septic abortion, or we can define this septic abortion as any abortion which is clinically associated, I can say, or clinically featured or clinically evidenced by any sort of infection in the uterus and its contents, or in the uterus or its associated parts. Then the abortion is said to be septic abortion. And usually what we see, although there are the various clinical criteria to organize or to classify the abortions, but considering the abortion that is the septic one, three things are necessary for that to be considered as that this is a septic abortion. When there is the firstly the rise of the temperature, yes, when there is the rise of the temperature, at least we go for the temperature above 100 degree Fahrenheit. If it is 100 degree Fahrenheit or 100.4 degree Fahrenheit or whatsoever, then we can say the client may be having the septic abortion. Not necessarily all the clients which come to you have the temperature like this and you can classify them as the septic abortions. No, maybe, but this the temperature, it should persist for about 24 hours or more than that, then you can classify this as the septic abortion. And secondly, offensive or plurent vaginal discharge. if there is any vaginal discharge हो रहा है इस client को, तो उसको प्लूरेंट या ऑफेंसिव स्मेल है, तो उस टाइम भी आप ये डायग्नोस कर सकते हो कि इसको सेप्टिक एबॉर्शन हो सकता है. तीसरा वाला होता है पैल्विक इन्फेक्शन. अगर कोई भी इंसिडेंट्स आपको लगे, अदर इंसिडेंट्स ऑफ पैल्विक इन्फेक्शन सच एज, क्या होता है इन्फेक्शन में यूजुअली अगर पैल्विस रिलेटेड इन्फेक्शन होंगे, जैसे आपने पैल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस पढ़ी होंगी, उनमें सबसे ज़्यादातर हमें लगता है लोअर एब्डोमिनल पेन. यस, डेफिनेटली देयर विल बी द लोअर एब्डोमिनल पेन एंड द टेंडरनेस. अगर ये चीज़ें दिखेंगी आपको, ये तीन चीज़ें, देन यू कैन कंसिडर द अबॉर्शन एज द सेप्टिक वन. Coming to the incidence of this septic abortion, agar hum overall incidence of septic abortion, it is very difficult to work out definitely, but पाया गया है कि 10% of the abortions जिनको admission की ज़रूरत पड़ती ही है, कि जो हमारे hospital में admit होने आते ही है, वो cases 10% वो क्या इसको बोलते हैं, वो septic abortion के related ही होते हैं, because of its complications, because of its dangerous signs and symptoms. उसकी वजह से उनको डेफिनेटली हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है, और तब हम बताते हैं लगभग 10% ऑफ द एबॉर्शंस जो रिक्वायरिंग द एडमिशन टू स्टे इन द हॉस्पिटल आर सेप्टिक. और ज़्यादातर ये जो सेप्टिक एबॉर्शंस है, द मेजॉरिटी ऑफ द सेप्टिक एबॉर्शन दे आर एसोसिएटेड विद द इनकम्प्लीट एबॉर्शन. वाई? बिकॉज देयर द in incomplete abortion we also see the contents, the conceptus contents do not get vaginally discharged completely, so some of the portion remains in the uterus which can lead to the infection. तो ये हो सकता है. एंड ये भी हो सकता है कि मेजॉरिटी जो केसेस आते हैं हमें सेप्टिक एबॉर्शन के, infection occurring होते हैं वो following the illegal abortion. When anyone has attempted some illegal abortion, illegal aborting the baby, the fetus, and there the infection can occur.
नाउ मोड ऑफ ट्रांसमिशन और मोड ऑफ इन्फेक्शन, कि कैसे इन्फेक्शन होता है इन द सेप्टिक एबॉर्शन। डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो इन्वॉल्व होते हैं इन सेप्सिस आर यूजुअली दोज जो ऑलरेडी नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं इन द वेजाइना, जैसे कि उनको बोलते हैं एंडोजीनियस, ठीक है ना, ये आपको पता ही, एंडोजीनियस ऑर्गेनिज्म जो ऑलरेडी नॉर्मल वेजाइना में प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द क्लाइंट, तो वो कॉज कर सकते हैं हमारा सेप्सिस। अब इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी दो रहते हैं, एक तो इनएरोबिक बैक्टीरिया के ग्रुप रहता है और दूसरा एरोबिक ग्रुप रहता है जो क्रिएट करता है इन्फेक्शन। इन एनएरोबिक आपके वही आते हैं, एनएरोबिक स्ट्रेप्टोकोकल, क्लॉस्ट्रिडियम या टेटनस बैसिलस, ये सारे आते हैं एनएरोबिक साइड से जो क्रिएट करते हैं सेप्सिस। और एरोबिक में आपका इकोलाई आता है, या स्टेफाइलोकोकस आता है, सीडोमोनास, या ग्रुप बी ये ए बीटा हेमोलिटिक स्टेप्टोकोकस कर सकता है एनी सॉर्ट ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है। और जैसा कि मैंने बोला कि इंक्रीज्ड एसोसिएशन पाया गया है बिटवीन द सेप्सिस एंड द इलीगल एबॉर्शंस। वाई? क्योंकि पहले ही द क्लिनिक्स इन विच दे परफॉर्म दे आर इलीगली सेट, these healthcare persons, they don't have adequate skills, they don't have adequate knowledge to carry on the abortion, so they may mishandle the client in certain aspect, जिसकी वजह से इंजरी, जिसकी वजह से ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन हो सकता है। एंड मोर ओवर द सीज, जो आपने 5 सीज पढ़े होंगे इन द नॉर्मल, कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरत रहती है इन व्हाट इज़ कॉल्ड एज in carrying out the abortion, that is आपका क्लियर कॉर्ड, क्लियर कार्ड, क्लियर सरफेस जो आपने पढ़ा ही है ऑलरेडी, वो अगर नहीं हुआ उसकी वजह से भी इन्फेक्शन होता है। दोज थिंग्स आर टू बी मेंटेन्ड एंड फर्स्ट इम्पॉर्टेंटली दे डू नॉट कैरी द प्रॉपर एसेप्टिक टेक्निक्स, राइट? एसेप्टिक्स इज नॉट टेकन केयर ऑफ, बिल्कुल भी नहीं। द सेकेंड वन, अगर उन्होंने डीएनसी किया, इवैक्यूएशन किया, वो इनकम्प्लीट होगा। सम ऑफ द प्रोडक्ट्स में रिमेन रिटेन्ड इनसाइड द यूट्रस, उसकी वजह से भी इन्फेक्शन क्रिएट हो सकता है। या मैंने बोला स्किल अच्छा नहीं है इनका हेल्थ केयर पर्सनस का, दे कैन गो फॉर द इंजरी इन द जेनिटल ऑर्गन्स या एडजेसेंट ऑर्गन्स, पर्टिकुलरली बाउल्स में, तो उसकी वजह से भी क्या उसको बोलते हैं इन्फेक्शन ट्रांसमिट होता है। This I already discussed, that there are the increased association of the sepsis with the unsafe induced abortions. Now pathology, how it कैसे क्रिएट होता है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म आपको समझना है, लगभग 80% वो वाले ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो एंडोजीनस इन ऑरिजिन है। एंड द इन्फेक्शन जो होता है दैट इज़ वेरी मच लोकलाइज्ड टू कंसेप्टस, फिलहाल के लिए विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द मायोमेट्रियल दिस लाइनिंग, ठीक है ना। एंड इन अबाउट ओनली 15% of these cases they can produce some localized endometrium को इन्वॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, वो ये कर सकते हैं, या स्प्रेड हो सकता है तो ट्यूब्स या ओवरीज या पैल्विक पेरिटोनियम में, और लगभग 5% ही बाहर तक जाते हैं, जैसे जनरलाइज्ड पेरिटोनाइट्स या एंडोटॉक्सिन शॉक हो सकता है इसकी वजह से। Now clinical grading of this what is called as septic abortion, as I told you variety दिखाता है ये sepsis। अब इसके हमने फर्दर clinical grades देखते हैं, grade 1, grade 2 and grade 3rd। grade 1 इन्फेक्शन इधर लोकलाइज्ड होता है सिर्फ और सिर्फ यूट्रस तक, सिर्फ इन्फेक्शन लोकलाइज्ड होगा पर्टिकुलरली टू द यूट्रस। ग्रेड 2 में द इन्फेक्शन कैन स्प्रेड बियॉन्ड द यूट्रस, ठीक, to the parametrium areas, to the tubes, to the ovaries, or to pelvic peritoneum, right? But in 3rd there is the excessive spread of the infection, जिसमें वो generalized peritonitis आ जाता है, एंडोटॉक्सिक शॉक हो सकता है उसकी वजह से, या जॉइंटिस हो सकता है, या
क्या उसको बोलते हैं, एक्यूट रेनल फेलियर हो सकता है, किडनीज तक पहुंच सकता है, ये सारा कुछ 3 ग्रेड्स होते हैं क्लिनिकल ग्रेड्स इन द सेप्टिक एबॉर्शन। और जो पहला वाला ग्रेड है ये सबसे कॉमनेस्ट है, ठीक है, एंड यूजुअली एसोसिएटेड रहता है विद द स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन, बट इट इज़ द वेरी मच कॉमनेस्ट ग्रेड कि क्लिनिक्स में जब भी हमें क्लाइंट आता है ज़्यादातर हमें इस वाले ग्रेड में ही आते हैं ऑफ द सेप्टिक एबॉर्शंस। नाउ व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द क्लाइंट जिसको ये एबॉर्शन होगा। पहले ही जब मैंने बोला उसको फीवर होना चाहिए, ठीक है ना, उसको तभी हम, जो मैंने ऑलरेडी कैटेगराइजेशन बोली, फिर भी हम देखते हैं क्लिनिकल पिक्चर क्या रहती है उनकी। डेफिनेटली इन्फेक्शन होगा तो फीवर तो ज़रूरी होगा। एब्डोमिनल पेन, यूजुअली हम पेल्विस पेन देखते हैं, लोअर एब्डोमिनल पेन देखते हैं, वोमिटिंग एसोसिएटेड रहती है, डायरिया एसोसिएटेड रहता है उससे, पल्स इंक्रीज्ड रहेगा, यूजुअली 100 टू 120 बीट्स पर मिनट रहेगा, ठीक है। पायरेक्सिया, डेफिनेटली जब पायरेक्सिया होगा तो पल्स रेट तो इंक्रीज होती है, तब भी हमें पता लग सकता है कि मे बी ये फर्स्ट ग्रेड से बढ़ कर गया है ये वाला एबॉर्शन, इट मे हैव गॉन टू द सेकेंड और द थर्ड ग्रेड। क्या उसको बोलते हैं, रिजिडिटी, टेंडरनेस हमें एब्डोमेन में नज़र आएगी। और अगर हम इंटरनल या वेजिनल एग्जामिनेशन करें, जो भी हमारा वेजिनल डिस्चार्ज होगा दैट विल बी ऑफेंसिव प्लोरेंट वेजिनल डिस्चार्ज, एंड वी विल हैव द टेंडर यूटरस, ठीक है ना, एंड बैगी फील होगा हमें यूटरस विद क्लोज्ड दिस ऑस। ये है क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द सेप्टिक अबॉर्शन। नाउ कमिंग टू द इन्वेस्टिगेशंस, जो हम जनरल इन्वेस्टिगेशंस कर सकते हैं इन द सेप्टिक अबॉर्शन, हमारा CBC रहता है, वाई CBC, बिकॉज यू नो वी सी द ब्लड काउंट्स, वी सी द WBC काउंट्स, इन दैट वाइट ब्लड सेल, डिफरेंशियल काउंट्स ऑफ द वाइट ब्लड सेल कैन बी सीन, ठीक है, वो कर सकते हैं हम। या CBC में हम HB लेवल्स भी देख सकते हैं, ठीक है ना, या CBC में हम क्या उसको बोलते हैं, टाइप ऑफ द ब्लड देख सकती है, ग्रुपिंग वो भी कर सकते हैं। या सिरम यूरिया केराटिन इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस तो नहीं हुआ है, जिसकी वजह से हमें ये भी पता चल सकता है द अदर ऑर्गन्स और नॉट इन्वॉल्वड इन द इन्फेक्शन इन द सेप्टिक अबॉर्शंस। वेजिनल स्वैब्स लेते हैं जो हम कल्चर के लिए दे सकते हैं प्रायर टू द दिस इंटरनल एग्जामिनेशन, जिसमें हम सीधे ही कल्चर से पता लग सकता है कि एरोबिक मीडिया से तो नहीं हुआ है ट्रांसमिट, या एनएरोबिक मीडिया कौन डोमिनेट ऑर्गेनिज्म रहा है इनमें, ठीक है, वो हम दे सकते हैं। या कल्चर से हमें ये भी पता चल सकता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस वाले एंटीबायोटिक्स को सेंसिटिव है, तो वो हम फिर प्रेस्क्राइब कर सकते हैं वही वाले एंटीबायोटिक अकॉर्डिंगली, जिससे उसको ज़्यादा क्या इसको बोलते हैं फ़र्क हो जाए, ठीक है। और ये सिमियर हमें ये भी बता सकता है कि ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम नेगेटिव है, इकोलाई है, कौन सा वाला है, स्टेफाइलोको का है ना, टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स भी हम इससे कर सकते हैं। एंड पेल्विस USG भी करते हैं इन जनरल टू सी द इंटरनल कंसेप्टस मटेरियल इनसाइड द यूट्रीन कैविटी, एंड एक्सरे एब्डोमेन कर सकते हैं, जिसकी वजह से मैंने बोला ज़्यादातर हम देखते हैं कि बॉल इन्वॉल्वमेंट होती है इस इन्फेक्शन से, तो हम बॉल इंजरी देख सकते हैं, ठीक है। एंड वी कैन ऑल्सो सी वेदर द इन्फेक्शन हैज़ लीड टू द अदर पार्ट्स, लाइक इफ़ देयर इज़ द डिफ़िकल्टी इन रेस्पिरेशन ऑफ एनी सॉर्ट, उस वो भी हम इन्वेस्टिगेशन में कर सकते हैं। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन में यूजुअली अल्ट्रासाउंड ही जाता है, जो हम अल्ट्रासोनोग्राफी जो हम पेल्विस का करते हैं, और वी डू द अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ द एब्डोमेन टू डिटेक्ट एनी इंट्रायूट्रीन रिटेन्ड प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन, जो मैंने ऑलरेडी बोला। या फॉरेन बॉडी तो नहीं है इंट्रायूट्रीन में, और इंट्रा एब्डोमेन में भी हो सकती है। या फ्री फ्लूइड पस फॉर्मेशन तो नहीं है इन द पेरिटोनियल कैविटी, ठीक है, वो जो हमें कभी कभी दिखता भी है दैट there is some pouch in the in the pelvis जिसमें फ्लूइड है, जिसको हम pelvis abscess बोलते हैं, वो हमें अल्ट्रासोनोग्राफी बता सकता है, ठीक है। ब्लड में जैसे मैंने ऑलरेडी बोला वो जनरल में भी करते हैं, और स्पेशल भी कल्चर ब्लड का करते हैं इफ़ इट इज़ एसोसिएटेड विथ
विथ व्हाट इज़ कॉल्ड एज चिल्स अगर हुए होंगे या रिगर्स हुए हैं, तो हम कल्चर ब्लड कल्चर भेज सकते हैं। सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स जिसमें हम CRP दैट इज़ सी रिएक्टिव प्रोटीन देखते हैं, वो हम देख सकते हैं, क्योंकि उसकी वजह से हमें ये पता लगेगा कि हमें किस तरीके से मैनेजमेंट करना है एंडोटॉक्सिक शॉक, क्योंकि एंडोटॉक्सिन ये ऑर्गेनिजम्स है, एंडोजेनस ऑर्गेनिज्म, उनकी वजह से ही ये इन्फेक्शन मेजॉरिटी टाइम्स होता है। ठीक है, वो ये कर सकते हैं। या प्लेन एक्सरे हम कर सकते हैं, जिसमें मैंने बोला हम एब्डोमेन का एक्सरे कर सकते हैं अगर हमें लगा कि बॉल इंजरी हुई है, या चेस्ट एक्सरे कर सकते हैं, जो मैंने ऑलरेडी बोला कि जिसमें हमें पता चलेगा कोई पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है, जैसे एटेलेक्टेसिस वगैरह, वो ये सब। तो ये हम स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस में करते हैं। Now complications, because the septic abortion, as it is very important type of the abortion, and मैं कह सकती हूँ इसकी complications भी बहुत ही ज़्यादा है। immediate complications हम देखते हैं, क्या इसको बोलते हैं, hemorrhage वेरी मच, बिकॉज अगर हम इमिडिएट कॉम्प्लिकेशंस की बात करेंगे, ये फैटल कॉम्प्लिके मोस्ट ऑफ दीज फैटल कॉम्प्लिकेशंस दे आर वेरी मच एसोसिएटेड विद द इलीगल इंड्यूस्ड अबॉर्शन। ठीक है, और वो ग्रेड थर्ड में ही आएगा, उसमें तो वही कॉम्प्लिकेशन रहता है। सबसे पहली चीज़ होगी हेमरेज, है ना। हेमरेज क्यों होगा? बिकॉज ड्यू टू द अबॉर्शन प्रोसेस, कि किस तरीके से अनस्किल्ड पर्सन या क्या इसको बोलते हैं, कोई भी पर्सन जिसने जो अबॉर्शन कैरी आउट करता है, विच में बी ड्यू टू रिलेटेड टू दैट हेमरेज हो सकता है। ठीक है ना, या इंजरी इन एनी मैकेनिज्म हो सकती है टू द इन्फ्लिक्ट, विच में बी इन्फ्लिक्टेड ड्यूरिंग द इंटरफ्रेंस, तो वो हो सकता है। या injury to they may occur to the uterus, to the adjacent structures, particularly bowels, because of the infection। ठीक है, वो हो सकता है। या स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करता है, जैसे मैंने बोला जनरलाइज्ड पेरिटोनाइट्स क्रिएट करता है, क्योंकि इन्फेक्शन ही पहुंचता है थ्रू द यूट्रीन ट्यूब्स। ठीक है, थ्रू योर परफोरेटेड यूटरस इन्फेक्शन इज कैरीड आउट, और अगर कोई माइक्रो एब्सेस है इन द यूट्रीन वॉल, उसका बर्स्ट होना, बर्स्टिंग ऑफ द माइक्रो एब्सेस इन द व्हाट इज कॉल्ड एज यूट्रीन वॉल्स, उससे इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है। ठीक है, या इंजरी टू गट हो सकता है। ठीक है, इस वजह से भी इन्फेक्शन क्रिएट होता है। या आप बोलेंगे एंडोटॉक्सिन शॉक हो जाता है, बिकॉज आई टोल्ड मोस्टली इकोलाई से ही होता है ये सब, तो उसकी वजह से एंडोटॉक्सिन शॉक हो सकता है। या आप बोल सकते हैं एक्यूट रिनल फेलियर हो सकता है, बिकॉज मल्टीपल दिस क्या उसको बोलता है, प्रोड्यूसिंग दीज कॉजेस आर इन्वॉल्वड इन दिस, जिसकी वजह से ट्यूबल नेक्रोसिस हो सकता है, जो हमें यही वाले एरोबिक या एनारोबिक वाले और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्रिएट करते हैं। या लंग्स में मैंने बोला ऑलरेडी, एटेलेक्टेसिस हो सकता है, डिफ़िकल्टी इन एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो सकता है, या इवन वेसल्स तक ये इन्फेक्शन पहुंच सकता है, जिसको हम थ्रोम्बोफिलेबाइटिस कहते हैं। एंड दे ऑल लीड टू द इंक्रीज्ड मैटरनल डेथ्स, मैटरनल मॉर्बिडिटी, एंड it has been seen कि इसका the magnitude of the maternal deaths is very much extended, लगभग 20 to 25% पर हॉस्पिटल स्टैटिकल से ये पता चलता है कि इतनी डेथ्स होती है इससे। Now prevention, how can we prevent the septic type of abortion? This septic type of abortion, तो प्रिवेंशन में अगर मैं बोलूँ, सबसे इम्पोर्टेंटली मैं ये बोलना चाहती हूँ कि इफ़ देयर इज़ एनी अनवांटेड प्रेगनेंसी, वी शुड टेक सम ऑफ द मेजर्स प्रायर कि अनवांटेड प्रेगनेंसी ना हो, ताकि वो इलीगल अबॉर्शन के लिए ना जाए। राइट, वो हो सकता है रिजिड, मैं कह सकती हूँ एनफोर्समेंट मैं करना चाहूँगी टू द लीगलाइज्ड अबॉर्शन इन प्रैक्टिस। इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम, वी शुड लीगली गो फॉर द अबॉर्डिंग द fetus,
because in order to curb the prevalence of this unsafe abortion, education is must, motivation and the this facilities unki extension karna to the needy people or to the lasting people, I mean to say the far flung areas people को ये उन facilities के बारे में educate करना, that is very much important. Or to take the antiseptic measures, aseptic precautions during the internal examination or during the operation of any sort of abortion. These aseptic techniques should be taken into consideration, then and only then we can prevent the this what is called as septic abortion. Now how can we manage the abortions, these septic abortions? The first important thing, the which I already told you, because the patients may need, will need the hospitalization, hospital stay. So the first important thing is for the septic abortion to manage is the hospitalization. The patient should be kept in the isolation to prevent the rest of the cross infections. उसको already हुआ होता है, तो we should keep the client in isolation. We should go for taking the vaginal and the cervical swabs for culture, जो already discuss किया है मैंने, और to test the drug sensitivity, किस एंटीबायोटिक से सेंसिटिव है, तो वही वाला हम दे सकते हैं, प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, और हम ग्राम स्टेनिंग भी कर सकते हैं कि किस वाले और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इसको इन्फेक्शन हुआ है. वेजिनल एग्जामिनेशन कर सकते हैं ताकि देखिए कि एक्सटेंशन ऑफ द इन्फेक्शन कितना हो सकता है. एंड ओवरऑल असेसमेंट अगर हम मैनेजमेंट का, तो उससे भी पता चलेगा कि कौन सी लेवल, कौन सा ग्रेडिंग है इस वक्त एबॉर्शन का पर्टिकुलरली. ठीक है. एंड ये सारा कुछ हम इन द जनरल मैनेजमेंट ऑफ द सेप्टिक एबॉर्शन करते हैं. नाउ कमिंग टू द मैनेजमेंट, इफ़ वी सी ये कंटिन्यू हो रहा है मैनेजमेंट इन द माइल्ड cases. If it is only the first grade, then we go for the broad spectrum antibiotics, and uterus is evacuated immediately if there is any product retrained products of the concept. Severe cases में हम crystalloids IV infusion करते हैं to maintain the osmotic balance, क्योंकि फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने का चांसेस होता है. सो उसके लिए ऑक्सीजन हम एडमिनिस्टर करते हैं. ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स वी गो फॉर मेट्रोनिडाजोल एंड एम्पिसिलिन, जेनेटामाइसिन, एंड यूट्रस इज़ ऑल्सो इवैक्यूएटेड विद इन 4 to 6 hours, ताकि बाकी वाली थेरेपी हम प्रोसीड कर सकें. There are certain principles of the management which we have to carry out, take into consideration before carrying out the management. Whatever we do in the management, we should firstly control the sepsis, try to control the sepsis as much as possible. Secondly, to remove the source of infection, to detect the source of infection and remove it, right? And then we have to give the supportive therapy to bring the normal homeostatic mechanism of that client back, and the cellular metabolism जो भी उसका normal है वो back लाने के लिए हमें फोकस करना है. एंड देन वी हैव टू गो फॉर द असेसमेंट कि किस तरीके से द क्लाइंट इज रेस्पॉन्डिंग टू माई ट्रीटमेंट. सो दीज 4 principles are very important, like the control of the sepsis, to remove source of infection, to give the supportive therapy for maintaining the normal hemostasis, and to assess the response of the treatment. हमें assess करना है. Now, coming to the recurrent miscarriage, or the we can say pregnancy loss. Why is it called the pregnancy loss? Because the word recurrent has been used. बार बार होना. Recurrent means कि on and off होता रहता है. So that is why it is also called as pregnancy loss. कि इससे ये भी पता ये depict होता है that she is not getting pregnant at all. वो उसका बेबी बार बार abort हो रहा है. It can be defined as a recurrent miscarriage is defined as the sequence of, I can say, 3 or more consecutive spontaneous abortions. Yes, definitely sequence of 3
not less than 3 but 3 or more than consecutive, एक के बाद एक के बाद एक abortion, spontaneous abortion, we call it recurrent abortion. And before 20 weeks of gestation, 20 वीक्स से पहले अगर बार बार इसको 3 या 3 से ज़्यादा बार स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हो गया, वी कैन से दैट दिस लेडी हैज़ द रिकरेंट अबॉर्शन. Some of the books or some of the literature may consider it as 2 or more as standard, right? And it may be this the प्राइमरी और सेकेंडरी, है ना. प्राइमरी मतलब क्या इसको बोलते हैं, पहले से हो रहा है इसको. सेकेंडरी मे बी समटाइम्स शी इज़ हैविंग द फर्स्ट बेबी एंड कोई कुछ और कॉज है कि सेकेंड बेबी से उसको ये सब हो रहा है, राइट. एंड this a woman which can जो procure कर रही है 3 consecutive induced abortion is not a this habitual, may not be the habitual aborter, ठीक है. वो हो सकता है या increased इसमें risk रहता है, increased risk of this increased risk with each successive abortion. इसका risk increase रहता है कि next time भी शायद इसको abortion ही हो जाए. लगभग 1% of the all women में ये पाया गया है. And there is no underlying cause which is found for 50% of the recurrent pregnancy loss, ये हम बोल सकते हैं. Now, what are the etiology for what is called as a recurrent abortion? The cause of this recurrent abortion, मैं कह सकती हूँ, it is very much complex है and most often obscure, and more often one factor may operate in any case. एक फैक्टर एक के रे सॉरी मोर देन वन फैक्टर, देयर इज़ नो चांस कि एक ही फैक्टर की वजह से ये वाला रिकरेंट अबॉर्शन होता है. देयर मे बी वन और मोर फैक्टर वन और मोर फैक्टर्स एंड देयर इज़ नो एज सच known specific factor which is responsible for the early or the late abortion. So there is no one such factor responsible for that. We can say there can be the multiple factors also. In first trimester अगर हम बात करेंगे कि किस वजह से अबॉर्शन होता है, तो जेनेटिक फैक्टर्स पाए गए हैं इसमें लगभग 3 to 5% पाया गया जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से अबॉर्शन होता है. लाइक पेरेंटल क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी प्रूव हो गई फॉर द कॉज ऑफ द अबॉर्शन, बिकॉज द मोस्ट कॉमन एबनॉर्मेलिटी हम देखते हैं, एबनॉर्मेलिटी इज़ अ बैलेंस ट्रांसलोकेशन. उसकी वजह से रिस्क ऑफ द मिसकैरेज इन कपल्स विद द बैलेंस ट्रांसलोकेशन वो पाया गया है ग्रेटर देन 25%. लेकिन कभी कभी हाउएवर चांस ऑफ सक्सेसफुल प्रेगनेंसीज भी इवन विदाउट ट्रीटमेंट होती है लगभग 40 to 50%, बट मेजॉरिटी मोस्ट कॉमन एबनॉर्मेलिटी बैलेंस ट्रांसलोकेशन है, वो ही पाया गया है इनमें ज़्यादा, या इनमें ज़्यादातर क्या उसको बोलते हैं ये रिस्क ऑफ मिसकैरेज जो मैंने ऑलरेडी बोला इन कपल्स विद बैलेंस ट्रांसक्यूलेशन 25% है. एंड दिस इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द अबॉर्शन फॉर द फर्स्ट ट्राइमेस्टर pregnancy loss. Second cause may be the endocrine and the metabolic cause. Endocrine and metabolic because जब भी हमने ये अबॉर्शंस पढ़े हमने देखा कि एंडोक्राइन सिस्टम इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग द नॉर्मल प्रेगनेंसी, है ना. चाहे वो कॉर्पस ल्यूटियम का हो, चाहे वो वही ल्यूटियल फेज हो या ओव्यूलेशन का हो. Oh, sorry. If there is the another endocrine cause like the poorly controlled diabetes patient, उनको इंसिडेंस ग्रेटर होता है, इंक्रीज्ड इंसिडेंस ऑफ अर्ली प्रेगनेंसी फेलियर. या थायराइड ऑटो एंटीबॉडीज इज़ वेरी ऑल्सो ऑफन एसोसिएटेड विद द इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ what is called as increased risk of the abortions.
या तीसरा आपको हो सकता है ल्यूटल फेज डिफेक्ट, जो मैंने अभी बोला, विद द लेस प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन, जो कि टू ऑफन रिलेटेड किया गया है क्या इसको बोलते हैं, व्हाट इज़ कॉल्ड एज दिस रिकरेंट अबॉर्शन। या पीसीओएस हम देख सकते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, वो मैकेनिज्म इंक्रीज कर सकता है मिसकैरेजेस। नॉट नॉट मतलब क्लियरली ये स्टडीज़ पाई नहीं गई है, बट पॉलीसिस्टिक ओवरीज में ये पाया गया है। और अगर ये क्या इसको बोलते हैं अदर फैक्टर्स हम देखें, जैसे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस, हाइपर इंसुलिनीमिया है, वो सब कुछ है, उसकी वजह से भी अबॉर्शन हो सकता है। द नेक्स्ट थिंग कम्स द इन्फेक्शन इन एनी जेनिटल ट्रैक may be responsible for this sporadic spontaneous abortion। ये हो सकता है जिसकी वजह से इट इज़ रिलेशन टू द रिकरेंट फीटल वेस्टेज, है ना, वो होता है, या ट्रांसप्लेसेंटल फीटल इन्फेक्शन है, कैन ऑकर विद मोस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। या इन्फेक्शंस विद बैक्टीरियल वेजिनोसिस, वो भी एक रिस्क, जैसे सिफिलिस, वो भी एक रिस्क बन सकता है अबॉर्शन का। या हम बोलेंगे इनहेरिटेड थ्रोम्बोफेलिया है, उसकी वजह से भी कॉज वो बन सकता है बोथ अर्ली और लेट मिसकैरेजेस का, ड्यू टू द इंट्रावेस्क्यूलर या प्लेसेंटर इंटरवेलस थ्रोम्बोसिस वो क्रिएट कर सकता है। जैसे हम देखते हैं हमारे बॉडी में प्रोटीन सी रेजिस्टेंस फैक्टर है ना, वो कॉज कर सकता है, मोस्ट कॉमनली वो कॉज करता है टाइप ऑफ दिस एबॉर्शन, बिकॉज प्रोटीन सी हम देखते हैं वो नेचुरल इनहिबिटर है कोगुलेशन का, ठीक है ना। अब अगर वो प्रेजेंट हुआ तो डेफिनेटली उसकी वजह से अबॉर्शंस हो सकते हैं, ठीक है। या क्या उसको बोलते हैं एंटीथ्रोबिन थर्ड अगर कम हो गया, उसकी वजह से भी क्या उसको बोलते हैं अबॉर्शंस क्रिएट हो सकते हैं। इम्यूनोलॉजिकल केसेस में हम देखते हैं ऑटो इम्यूनिटी या एलो इम्यूनिटी की वजह से बहुत सारे केसेस पाए गए हैं ऑफ द एबॉर्शन। लगभग इम्यून फैक्टर्स लगभग 10 to 15% कॉज होते हैं रिकरेंट एबॉर्शन के, because of these presence of these antibodies which causes rejection in the early pregnancy। ये हमने पिछले स्लाइड्स में भी बात की थी। और मेनली इन द सेकेंड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसीज, एंटीबॉडीज़ जो एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज़ होती है, या एंटी डीएनए बॉडीज़ होती है, या एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज़ होती है हमारे अंदर, वो टेंडेंसी उनको वो दे डेमोन्स्ट्रेट द टेंडेंसी टू मिसकैरी प्रोग्रेसिवली द लोअर गेस्टेशनल एजेस। वो कॉज बन सकता है हमारा मिसकैरेजेस में। कैसे वो एंटीफॉस्फोलिपिड कैसे एंटीबॉडीज़ कैसे कॉज बन सकती है, बिकॉज वो इनहिबिट करती है ट्रोपोब्लास्ट पॉलिफरेशन, उनकी फंक्शन को ही इनहिबिट करती है। या वो क्या करती है, वो रिलीज़ करती है लोकल इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स लाइक साइटोकिन्स, जो मैंने पहले भी बोला था। या क्या इसको बोलते हैं डेसिडुआ वेस्कुलोपैथी क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से नेक्रोसिस आगे जाके हो, उसकी वजह से ये सारे फैक्टर्स बन सकते हैं इन व्हाट इज़ कॉल्ड एज एबॉर्शन। ऑलो इम्यूनिटी में इम्यून रेस्पॉन्सेज दे फाइट अगेंस्ट द पैटर्नल एंटीजेंस इन द फीटस, ठीक है ना। जैसे हमारे में होते हैं नेचुरल किलर सेल्स, दे आर फाउंड इन आवर पेरिफेरल ब्लड, एंड द यूट्रीन म्यूकोसा के अपने नेचुरल सेल्स हैं जिनको हम UNK बोलते हैं। और ये दो ग्रुप्स जो नेचुरल किलर सेल्स के होते हैं, दे डिफरेंट फंक्शनली, एंड देयर इज़ नो रिलेशन बिटवीन द पेरिफेरल नेचुरल किलर सेल्स और ये क्या इसको बोलते हैं यूट्रीन नेचुरल सेल्स। तो उसकी वजह से अगर दे डू नॉट वर्क हैंड in hand, they can cause what is called as abortions। सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी अगर हम बात करेंगे रिकरेंट एबॉर्शन किस वजह से हो सकता है, तो एनाटमिकल एबनॉर्मेलिटीज़ रेस्पॉन्सिबल हो सकती है। एनाटमिकली यूट्रस में अगर कोई एनाटमिकल एबनॉर्मेलिटी हुई, लगभग 10 to 15% ऑफ द रिकरेंट एबॉर्शंस उस वजह से हो सकते हैं। जो भी कॉज हो, चाहे कंजेनेंटल डिफेक्ट हो, जैसे हम देखते हैं म्यूलियन डक्ट फ्यूजन जब हो जाता है, जब यूट्रस बनता है, अगर उधर म्यूलिन डक्ट फ्यूजन हो गया, वो यूनिकॉर्नेट
कॉर्डिनेट यूट्रस भी बना सकता है, बाई कॉर्डिनेट यूट्रस भी, या सेप्टेट या डबल यूट्रस जिसको बोलते हैं, जो पिछली स्लाइड्स में भी डिस्कस हुआ था। अगर वो कॉज है एनाटमिकल कॉज, वो भी बन सकता है एबॉर्शन का एक बहुत बड़ा कॉज। या एक्वायर्ड इंट्रायूट्रीन एडिशंस हो गए प्रीवियस कार्स से, या एडिशंस फॉर्म हो गए ड्यू टू द इंजरी, उसकी वजह से भी, या यूट्रीन फिब्रॉइड, एंड्रोमेट्रियोसिस, सर्विकल इनकम्पिटेंसी, ये एक्वायर्ड कॉजेज बन सकते हैं फॉर द सेकेंड ट्राइमेस्टर मिसकैरेजेस। इसमें सबसे इम्पोर्टेंटली आता है यूट्रीन कॉज और सर्विकल इनकम्पिटेंसी। ये दो मेन कॉजेस रहते हैं फॉर द कॉज ऑफ द सेकेंड ट्राइमेस्टर एबॉर्शंस। यूट्रीन कॉज में मैंने बोला अगर ये म्यूलिन फ्यूजन में डिफेक्ट हो गया, तो डिफेक्टिव म्यूलिन फ्यूजन हो गया, उसकी वजह से वो डबल यूट्रस बना सकता है, या सेप्टेट या बाइकॉर्डिनेट यूट्रस, और अबाउट लगभग 12% इसी वजह से एबॉर्शन हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि इम्प्लांटेशन नहीं हो जाएगी, क्या इसको बोलते हैं, अच्छे तरीके से इन द सेप्टम, विच लीड टू द डिफेक्टिव इम्प्लांट दिस प्लेसेंटेशन ऑल्सो, ठीक है ना, वो हो सकता है, तो उस वजह से एबॉर्शन होता है। या एशरमैन सिंड्रोम मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, दीज आर द इंट्रायूट्रीन एडहेशंस, जो प्रीवियस क्यूरेटेज की वजह से हुआ होगा, प्रीवियस इंजरीज की वजह से, वो भी अर्ली मिसकैरेज का चांस बन सकता है, ठीक है ना। और ये कैसे हम देखते हैं ये डिफेक्ट्स है कि नहीं, चाहे TVS के ज़रिए से दिखे या हिस्टेरोस्कोपी के ज़रिए से, हमें सीधे ही पता चल के एशरमैन्स डिजीज़ है या सेप्टम है, तो ये उसी के ज़रिए से हमें पता चलता है। These are the pictures, जैसे septate uterus, you can see the septa, this ना wall जैसा between the in the uterus, जिसने उसको दो सेप्टा में डिवाइड किया, या डबल यूट्रस क्या उसको बोलते हैं, एंटायरली दो यूट्रस जैसे मिलेंगे, हैविंग द इनकम्प्लीट कैपेसिटी फॉर इम्प्लांटेशन और प्लेसेंटेशन। ये आप क्लियरली देख सकते हो। यहाँ पे भी आपको ये हिस्टीरियो सेल्फिनगोग्राफी से सीधे ही पता चलेगा कि किस तरीके से यूट्रीन ट्यूब्स या यूट्रस जो आपको दिखता है बाइकॉर्डिनेट यूट्रस, मतलब हार्ट शेपर का, ऐसे ही दो यूट्रस और उसके साथ आपको फेलोपियन ट्यूब्स भी नज़र आएंगी। दिस पिक्चर डिपिक्ट्स दैट. So this structural abnormality, the uterine structural abnormality is the first cause या सबसे important cause जो रहता है आपका recurrent abortion होने में. This was all about today's topic. I will continue with video next time inshallah taala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.